Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Okay, so in your class, I'm having the proxy today again. Okay, so what we are discussing is what we were discussing in the last class. What we were discussing in the last class. Yes, what we were discussing in the last class. Can I get to know? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? What we were discussing? मैम बहुत लोगों को अंदर नहीं लिए क्लास के। Actually, waiting room is that it is admitted. वेटिंग रूम एनेबल, अच्छा वेटिंग रूम एनेबल हो गया, सॉरी, यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग। Morning. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, नहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम नॉट, सॉरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रिवीजन करना है, इजंट दैट? और इस मैटर अराउंड द स्फीयर, इस मैटर अराउंड द स्फीयर का रिवीजन कर रहे थे। यस, इस मैटर अराउंड द स्फीयर का रिवीजन कर रहे थे कि नहीं, इजंट दैट? हम कोलॉइड्स में आ गए थे शायद, इजंट दैट? कोलॉइड्स में आ गए थे। कोलॉइड्स, Yes. और कलर्ड स्टोन वाला हमारा रिवीजन चल रहा था। ओके, तो वही वाला करेंगे अभी। For this up to question number 8 we have reached. Question number 8 we have reached. Now we have to move to the question number 9. Okay, let's so move to the question number 9. Okay, describe any three properties of colloid. Describe any three properties of colloid. Any three properties you have to tell me. Bhumika, 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 any three property you tell me. Bhumika, Yes, ma'am. any three property of colloid you tell. Just wait second, wait a second beta, wait. 1 second, please wait, huh? Just 1 second. Three properties of colloid, please answer me to the chat. Three, yes, Bhokavya, you want to tell? Yes, Tanmay, very good. How much is the size of the particle colloids, beta? Ma'am, 1 nanometer to 100 nanometer. Yes, very good. Kavya, very good. Just you want, please give me the answer to the chat so that I can see your writing work also. आपका जो मैं राइटिंग वर्क है वो देख सकूं प्लीज, इसलिए मुझे यस खुशी, यस करेक्ट। ओके, तो कोलॉइड्स का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे तो कोलॉइड है हेट्रोजीनस मिक्सचर, इट इज शोज टिंडल इफेक्ट, यस, ओके, इट शोज टिंडल इफेक्ट, particle sizes between 1 nanometer to 100 nanometer, and second thing is that it is it cannot be separated by simple filtration. They are quite stable. They are how they are looking. They are transparent, translucent, or opaque. They are transparent, translucent, or opaque. They are transparent, translucent, or opaque. They are transparent, translucent, or opaque, beta. They are transparent, translucent, or opaque. Translucent. They are Transparent. translucent. Translucent. These are the properties of the colloid. Okay.
Now next, differentiate between a true solution and a colloid. Please answer through the chat. Differentiate between true solution and a colloid. Answer through the chat. Differentiate between true solution and a colloid. मिनिमम 3 आप लिख के भेज दीजिए और ऐसा वो डिफरेंस होना चाहिए जो सही में दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सके. ऐसा नहीं कि दोनों में सेम आए. जैसे फिल्ट्रेशन, दोनों को सिंपल फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, वैसा डिफरेंस नहीं होगा. डिफरेंस शुड बी क्लियर कट, डिफरेंस शुड बी बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड. सो प्लीज आंसर. Yes, please answer. I'm waiting. Yes, Prishika correct है, एक difference correct है. What about others? Others, please जल्दी. Yes. Yes, correct. राज करेक्ट है. यस भूमि. मुझे बेटा 3 डिफरेंस क्यों नहीं दे पा रहे हो आप लोग? एक ही डिफरेंस क्यों दे रहे हो? तन्मय. यस यस तन्मय करेक्ट है बेटा. यस इट इज करेक्ट. Okay, any other? Okay, so I am telling you that this particular colloid, colloid is heterogeneous, true solution is homogeneous. तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? colloid is heterogeneous whereas true solution is homogeneous. True solution is transparent whereas colloid is translucent. In true solution, particle size is 1 nanometer, less than 1 nanometer, whereas colloid the particle size is between 1 nanometer to 100 nanometer. In true solution, what else is you can say that in ट्रू सोल्यूशन को आप ट्रू सोल्यूशन जो रहता है दे आर स्टेबल 100% स्टेबल, वेयरएज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल. क्वाइट स्टेबल मतलब आप दूसरे टेक्निक से उसको सिंपल टेक्निक से नहीं सेपरेट कर सकते, बट आप हायर टेक्निक लगा के सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह जैसे टेक्निक लगा के सेपरेट कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाइट स्टेबल. ओके. एंड सेकंड थिंग जो है ट्रू सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट वेयरएज कोलॉइड शोस टिंडल इफेक्ट. तो हो गए 5 डिफरेंस. इज इट क्लियर? पहला डिफरेंस क्या हुआ कि ये जो कोलॉइड ट्रू सोल्यूशन है वो जो होमोजेनस होता है, जबकि कोलॉइड जो होता है वो हेट्रोजेनस है. ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, 1 लेस देन 1 नैनोमीटर, वेयरएज कोलॉइड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर्स के बीच में आएंगे. ट्रू सोल्यूशन दिखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि कोलॉइड जो रहता है ट्रांसलूसेंट रहता है. ट्रू सोल्यूशन में हमको टिंडल इफेक्ट नहीं मिलता, जबकि कोलॉइड में हमको टिंडल इफेक्ट मिलेगा. ट्रू सोल्यूशन 100% स्टेबल होते हैं, जबकि कोलॉइड जो होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइड के डिफरेंस में कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, Tanmay, you are giving me the answer. Let me check. Now the next question. Distinguish between compounds and mixture. Minimum 3 आप बता सकते हैं. Distinguish between compounds and mixture. Minimum 3, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा, ये 5 मार्क्स में तो नहीं आने वाला. ओके. 3 मार्क्स का बताओ. मिनिमम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. ओके. 5 डिफरेंसेस ऑल्सो. आपको जितने में आप डिफरेंसेस आते हैं वो बताइए. मार्क्स का तो हम बाद में वेरी कर सकते हैं, 3, 5, 4, 2. ओके. लेकिन आप पहले मुझे डिफरेंसेस बताइए कितने आएंगे, कितने आते हैं आपको? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन बी फॉर्म. ओके. यस
यस यस ओके टेल। और कोई? और कोई? यस यस मोर। एनीबडी? बस एक ही बच्चा आंसर दे पाएगा क्या? और आई हैव टू डिस्कस इट अगेन? शुड आई कॉल आउट योर नेम देन ओनली यू विल बी टेलिंग? भूमि? यस भूमि टेल, आई एम वेटिंग। बेटा बोलो भूमि। Ma'am, a compound has, yes, ma'am. Ma'am, a compound has a fixed melting and boiling point. A mixture does not have a fixed melting point and boiling point. And second, elements react to form a new compound. The elements and mixture, element or compound mix together to form a mixture. Yes. Anything else? Ma'am, compounds are separated by chemical methods. A mixture can be separated by physical methods. Okay. And then examples, compound examples are carbon dioxide and calcium carbonate, and mixture examples are air, soil, etc. Okay. Okay, so let me discuss. So first I will be starting from the basic. Okay. तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कि कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है। तो हम कंपाउंड्स अगर देखते हैं तो व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस। What are compounds? Compounds are the substance which can be formed by chemically combining two or more elements. ठीक है, तो कंपाउंड कैसे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है। और मिक्सचर क्या होता है? बाय सिंपली मिक्सिंग टू और मोर फिजिकल सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कैन गिव यू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैन गिव बाय मिक्सचर। ओके, तो ये चीज तन्मय ने पहले से बोल दिया। तन्मय योर 1 पॉइंट इज करेक्ट। ओके, कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन कराओगे तो एक नया कंपाउंड बन सकता है। ओके, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनमें हम फिजिकल मिक्सिंग करते हैं दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स की, तब जाके मिक्सचर क्रिएट होता है। सेकेंड थिंग, कंपाउंड जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स आर होमोजेनियस। कंपाउंड्स दिखने में कैसे रहते हैं? होमोजेनियस। जैसे पानी है तो पानी के अंदर के अगर पानी का अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाए तो पानी को बनाने के लिए सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे और कोई मॉलिक्यूल उसको बनाने का नहीं आएगा। ओके, सो दैट मीन्स this particular compound is made up of same type of atoms, that means it is a pure substance, whereas heterogeneous में आपको same type of whereas compound जो रहेगा वो heterogeneous है। जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर में हमको, जैसे अभी मैंने सॉल्ट और शुगर ले लिया, तो मिक्स करने के बाद भी आपको क्या दिखाई देगा? आपको मिक्स करने के बाद भी क्या दिखाई देगा? आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स कहीं दिखाई देंगे। तो यानी कि वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। ओके, तो कंपाउंड इज होमोजेनियस वेयर एज मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस। सेकेंड थिंग, एक और चीज हो गया कि कंपाउंड जब हम बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। दैट मींस इफ यू आर सेइंग वाटर, दैट मींस यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ वाटर एज 1:8। मास रेशियोज में हमेशा 1:8 ही आएगा। ओके, अपनी मर्जी से आप 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ले लो, ऐसा नहीं होता। उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जबकि आपका जो मिक्सचर होता है, इन मिक्सचर द कंपोजिशन इज वेरिएबल। आपकी इच्छा है, आप उसको ज्यादा कम कर सकते हो। ओके, क्लियर?
और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट होता है, जो कंपाउंड्स होती है उसकी प्रॉपर्टी यूनिक रहती है। यूनिक रहती है मतलब जिस एलिमेंट से वो बना है उससे उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। ओके, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन उन दोनों से उसकी प्रॉपर्टी अलग है। जैसे हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी जल देता है, तो वाटर क्या जलता है क्या? नहीं। ऑक्सीजन कंबशन को फेवर करता है, वाटर फेवर करता है क्या? नहीं। सो दैट मीन्स व्हाट? तो ये जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यूनिक हो गई, यानी कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जबकि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमने एक मिक्सचर बनाया आयरन और सल्फर का, तो आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो जैसे ही अगर आप उस मिक्सचर के ऊपर मैग्नेट लेके आओगे तो आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड। ओके, क्लियर? तो ये हो गया, इतने सारे डिफरेंसेस हो गए। अब इसके अलावा और भी डिफरेंस हो सकता है। क्या डिफरेंस हो सकता है कि हम जो कंपाउंड है उसको सिंपल फिल्टरेशन या सिंपल तरीके से, हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को सिंपल फिजिकल मेथड ले, जैसे कि मैग्नेट हो गया, सॉल्वेंट को यूज करके हो गया, ऐसे मेथड यूज करके हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। All these points are clear to everyone? Yes, all these points are clear to everyone? मैंने आपको 5 से ज्यादा बता दिया, आप 5 मार्क्स से क्वेश्चन क्या लिख सकते हो इससे आराम से। ओके, सो आई वांट यू पीपल टू रिपीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक आंसर। ओके, नॉट टॉपिक, आंसर। डिफरेंस बिटवीन, मैंने अभी आपको जितने भी डिफरेंसेस बताए हैं उस पर्टिकुलर डिफरेंसेस को आपको मुझे बताना है। ओके, काव्या? यस काव्या? काव्या मैम चल भी बेटा, मैंने अभी जो जो डिफरेंसेस बताए हैं उसको आप रिपीट कीजिए। अब मिनिमम 5 बताइए मुझे, मिनिमम 5 डिफरेंस बताइए। मैम mixture are impure substance and compound are in pure substance. हाँ, या करेक्ट, वेरी गुड, 1 पॉइंट हो गया। और mixture do not have boiling point, but compound have fixed boiling point. एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था फिर भी आपने बता दिया, चलो वेरी गुड, एक्स्ट्रा पॉइंट काव्या ने बताया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। And ma'am, 3 मोर यू टेल। yes ma'am. मिक्सचर क्या है और कंपाउंड कैसे रहते हैं? होमोजेनस, हेटेरोजेनस, क्या रहता है? मैम मिक्सचर होमोजेनियस रहता है और कंपाउंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनस, कंपाउंड इज होमोजेनस एंड मिक्सचर इज हेटेरोजेनियस। ओके, ठीक है। यस मैम। और कोई 2 पॉइंट? यस, यस, टेल मी। Ma'am, mixture is not in fixed ratio and compound is in a fixed ratio. यस, कंपाउंड का जो रेशियो, मास बाय रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है और मिक्सचर का फिक्स नहीं रहता है। एंड वन मोर Ma'am, mixture यस, mixed physically. कंपोजिशन, मिक्सचर का कंपोजिशन जो रहता है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, दैट मींस कंपोजिशन इज वेरिएबल, जबकि कंपाउंड का कंपोजिशन जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। और कुछ एक बार ऐड करोगे? No ma'am. एनी अदर पर्सन? दिव्या, दिव्या, दिव्या और दिव्या, yes, no reply. Harit, Harit, yes, यस मैम। हाँ बेटा, रिप्लाई नहीं। आपको इसके अलावा कुछ पॉइंट्स बता सकते हो जो काव्या ने बताया?
यस मैम। यस, काव्या ने आई थिंक 2 पॉइंट्स नहीं बताए जो ऐड किए जा सकते हैं। नो मैम, और कोई नहीं। अच्छा, काव्या ने ये बताया क्या, दे कंपाउंड्स कांट बी सेपरेटेड by simple physical method, whereas mixtures can be separated by simple physical method. यस मैम, ये बात हो सकता है, और तो कोई Compounds नहीं। जो होते हैं वो आपका compounds can't be separated by simple physical method, whereas mixture can be separated by simple physical method, and compounds are formed by chemical reaction, whereas mixtures are formed by mixing of the physical mixing of the elements. Okay, तो ये हो गया. अब next question is a numerical 12th question. Just see and solve it fast. Just see the 12th question and solve it. आपको मास परसेंटेज वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, वही वाला है. ओके, सो काव्या यू आर सेइंग दैट 1.96. ओके, यस, मोर, और कोई? Ma'am, screen share is off. Okay, sorry. Okay. Yes, please solve it and send me. आपने कैसे solve किया इसको? Solve and send me. आंसर सही है, बिल्कुल 100% सही है. आपने कैसे सॉल्व किया इसको? कैसे सॉल्व किया? How you solved it? I want the answer. Yes, tell me. Sarita ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. I think the students can also hear me. Just raise your hands if you can hear me. Raise your hands. Yes, I can see only 2, 3. Yes, good. Now, this 9th standard students are taking academics very casual. Your projects are not on time. You are not replying to the teacher when they are asking the questions and doing the revisions. Nothing is on time. Let me tell you, if you don't submit your art integration project by today evening, I'm asking all the subject teachers to give you 0 for 20 marks in all the subjects. So your annual exam will be evaluated only out of 80. Am I clear to you? Those who are not here in the class, please tell your classmates. Those who are here, you tell the classmates. Those who are not here in the class. Okay? Spread the message very clear to them. Today is the last day of art integration. And if you don't submit by today evening to your subject teachers, you will be rewarded 0. And complete your notes and send the PDF. We should get it by Monday evening. Otherwise, the subject teachers will give you 0 in classwork copy correction also. Enough is enough. And start taking academics seriously, because you have to write the exam. Annual exam is not going to be general promotion. Don't be under that notion. Am I clear? Yes, Thank you, ma'am. ma'am. Please continue your class. Okay, ma'am, thanks. Okay, so I got the solution from Tanmay. Your answer is correct, beta. Yes. Who is that? Showing Kavya? Yes, beta, very good. Correct. Yes, here, amount of, who is this person? Yes, Kavya, I can see your answer, beta, correct. Harit, 1.6, ये किसका आंसर भेजा आपने बेटा? मैं फर्स्ट वाले का पूछ रही हूँ. Okay, your answer is correct, Krishika, you are correct. And show me in the video what you have solved. You can show me the answers in the video. Okay, आप अपना वीडियो ऑन करके मुझे सॉल्व करके दिखा सकते हैं. You can write in the chat also. I can check from there. But I am not getting any response. Only one person, Kavya, has shown. Tanmay has sent me the screenshot. Yes, here is Yash. Yes, show me. Good, beta, good.
Yes, it is not visible. Everything is bright only. Okay. Yeah. Yes. Now is that Bhumi? Very good, beta. Very good, Bhumi. 100% correct. Clear है, एकदम सही. Okay. चलो. Good, beta. Good. अब next न्यूमेरिकल्स में जाते हैं. Next न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व करोगे. You will send me through the chat, or you can show me the video. Switch on the camera and show me what you have solved. Second is a solution of urea in water contains 16 gram of it in 120 gram solution. 16 ग्राम यूरिया है, कितने में है? 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. आपको उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. यस यश. ओके, आई वांट टू सी द मेथड. आपने किसको सॉल्यूट रखा है, किसको सॉल्वेंट, सोल्यूशन कहाँ पे किसको रखा है, इक्वेशन. जब आपको पूरे मेथड का नंबर मिलेगा, सिर्फ फाइनल आंसर का नहीं. सो आई वांट टू सी द वीडियोस आल्सो. ओके, क्वेश्चन इज डन. अब मैं शुड आई स्टॉप दिस शेयरिंग? क्वेश्चन देख लिया ना सबने. 16 ग्राम यूरिया को 120 ग्राम सोल्यूशन में डाला है, तो मास परसेंटेज क्या होगा? आई वांट टू सी दैट. I want to see that how you are solved. Please show me your switch on your camera and show me, or you can write in the chat also. Yes, correct. ये कौन है? Who is that? Who has sent me? Tanmay. Yes, Tanmay. Yes, Bhumi. Good, very good, beta. Good. Yes, good. Bhumi, I can see your answer. Good. Only 2 people are replying. Yes, Yash. Yes. It is how much it is? How? Third. Krishika is correct, beta. Okay, correct है. Yes, yes, I can see now. Yes, okay, correct है. Yash and Krishika, very good. आपका आंसर सही है. So the answer is 13.3%. Very good. Okay. Yes, what? किसने बोला क्वेश्चन? Can you show the? Yes, Raga, what you want? Okay, beta, showing. Oh. Now go to the next question. Question number 14. Now go to the next question. Question number 14. 5.6 ml of alcohol with 75 ml of water. 5.6 ml of alcohol with 75 ml of water. Please solve this again and send me the same way. आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए, या फिर आप अपना चैट से मुझे आंसर दे सकते हैं. ओके, एंड दिस टाइम आई वांट टू सी द आंसर्स ऑफ देव्य, परी, प्रियांश, राघव, राज. व्हाट अबाउट यू पीपल? गौरव, याशी. Yes, Yashi. Yes. So only few people are there in my class, or what? Rest all sleeping or what? It's not even night that you people are dozing off now only. I am waiting for the reply. Yes, somebody has sent me the answer also. Wait 1 second, let me see that. कहाँ गया?
Yes, very good. Who is that? Krishika, very good. Well done, beta. Correct hai. Very good. And very good, Krishika. And who has sent me this through the chat? Let me see. Let me see that. Yes, Tanna, very good. Well done. Your answer is correct. Raghav, points का mistake है. Just check it. Only 3 people have replied. What about others? What about others? The correct answer is 6 point. Okay. Bhumi is showing very good. Bhumi is showing me here. Yes, Bhumi, well done, very good. The correct answer is 6.95. Yes, also correct. But next time, please send and show me the method also. Okay? So the final answer is 6.95. Raghav, correct beta, 6.95 hai. Correct answer is 6.95. Very good. Most of you have solved, but some people like Pari, Priyansh, Raj, Sakshi, Sheetal, I am not getting any reply. Not getting any reply. Kavya is showing me. Very good. Very good, beta. Correct hai. Good. Okay. Well done. So let's move to the next question. Next question is this. 15th question. 15th question. 15th question. Just see the 15th question. I will give you 2 minutes. Then I will stop the sharing. 15th question. Yes. Answer through the chat. I am waiting for the reply. Yes, I am waiting for the reply, please. Answer quickly, otherwise class will be finished. Ma'am, Yes. ma'am, I'm showing you my answer. Yes, now I can see. Okay, very good. Correct hai beta. Very good. Correct hai. Correct hai. Who is the name? Where is the name? Who is that? Who has shown me just now? Krishika. Okay, good. Good. Krishika. I should know the name of the person who is giving me the answer. It is not like that कि आप आंसर दे रहे हो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बच्चा मुझे आंसर दे रहा है. यश ये किसका है? 3.363 किसका है? सॉल्ट का है. ओके. ये किसने दिया मुझे आंसर? 5.45. Somebody is giving me the answers. Let me check. Tanmay. Okay, good. Okay, Priyansh correct है. लेकिन किसका है 3.63? ओके, काव्या वेरी गुड. काव्या सही है. ओके, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है. गुड. राघव 6% 4% कहां से आया? यस, तन्मय आपका आंसर सही है. प्रियांश आपने ये जो ओके 5 इसका ग्लूकोज का व्हाट अबाउट सॉल्ट? यस, ठीक है. ओके, तो दिस इज द आंसर करेक्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 16th question. 16th question you see. 16th question. Question number 16.
क्वेश्चन नंबर 16. Yes, tell me question number 16. See that? Yes, Priyansh, correct है. Okay, beta, wait. I am telling. I have kept the answer here. This answer is visible to you. तो मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन होता है ना, और सोल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन रहता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है. अब अगर हमने क्या बोला कि एक जो स्टूडेंट है उसका मास परसेंट, उसने मास परसेंट कितना लिया था? 10% बनाना था दोनों को, ओके. लेकिन रमेश ने क्या किया? शुगर को पानी में डाला. पानी क्या है? सॉल्वेंट होता है, यानी कि सॉल्वेंट में उसने 10 ग्राम डाला, यानी 10 + 100 कितना हो जाएगा? 110. तो कंसंट्रेशन क्या आएगा? 9.09. लेकिन जो सारिका नाम की स्टूडेंट है उसने क्या किया? उसने सोल्यूशन में डाला. उसने क्या किया? सोल्यूशन को में 10 ग्राम डाला. उसने पानी सॉल्वेंट में नहीं, उसने सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम डाला, है कि नहीं? यानी सोल्यूशन तो उतना ही है 100, उसने 10 ग्राम डाला, तो उसका कंसंट्रेशन क्या आएगा? 10%. ओके, तो दोनों का कंसंट्रेशन यानी परसेंटेज जो है दोनों का सेम नहीं है. क्लियर है तन्मय? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब मैं थोड़ा देख लेती हूँ मुझे ऑन द टाइम किसने मुझे मैसेज किया है, ऑन द टाइम मुझे ऑन द नोट किसने मुझे भेजा है. ओके, लेट मी चेक. Yes, Bhumi is giving me the answer. भूमि, ये वो आप किसको, कौन से वाले को दिखा रहे हो मुझे बेटा? मैम इट्स 15 क्वेश्चन. Yes, राघव. Yes, I can see. करेक्ट है. Yes, राघव. I checked your answer. It's correct. And Shrehil, what 38.4? आप मेरे को किसका आंसर बता रहे हो? You are telling me 38.4% किसका है ये? Yes, tell me quickly. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास इसी का एक्सपेंशन करेंगे. इसी का एक्सपेंशन मतलब थोड़ा सा और इसका क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द